Welcome to the today's lecture. Today we will discuss the impedance of LCR circuit. Then we will derive the expression for impedance of LCR circuit, and then we will also derive the expression for the phase angle of LCR circuit. Now, before discussing the impedance, we will recapitulate the previous three lectures. We know that if we have a purely resistive circuit, in a purely resistive circuit, voltage and current, they are in phase. There is a phase difference of 0 between voltage and current in a purely resistive circuit. In a purely inductive circuit, voltage leads the current by a phase angle of pi by 2. Whereas in a purely capacitive circuit, current leads the voltage by a phase angle of pi by 2. I will make use of these three cases while discussing this impedance of an LCR circuit. Now, you have also read that inductive capacitance and inductive capacitance and inductive reactance and capacitive reactance. We have read that inductive reactance and capacitive reactance. Inductive reactance was the opposition offered by an inductor to the flow of current through it. And then we studied the capacitive reactance. This was the opposition offered by a capacitor to the flow of current through it. Okay, na? I will make use of them also while discussing this impedance. For example, we have a series LCR circuit in which we have three components. We have a resistor R, we have a capacitor C, and we have an inductor L. Inductor L. I have connected these three components in series. This is the resistance, this is the capacitor, and this is the inductor. These three are connected in series. Suppose I will connect these three to a source of alternating EMF which is here. मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है. किसकी सीरीज कॉम्बिनेशन है? शाबाश, रेजिस्टर की, कैपेसिटर की और इंडक्टर की. ठीक है ना? तो चूंकि they are in series, so we call this circuit as series LCR circuit. What we call this as? Series LCR circuit. L is the inductor, C is the capacitor, and R is the resistor. ठीक है ना? Suppose I will apply an alternating EMF E is equal to E naught sin omega t to this LCR circuit. ठीक है ना? By applying this alternating EMF to this LCR circuit, an alternating current begins to flow through this circuit. Now, this alternating current will be opposed by the resistor, this will be opposed by the capacitor, this will be opposed by the inductor. So, in LCR circuit, we have a combination of three oppositions. Number one, the current will be opposed by the resistor, the current will be opposed by the capacitor, the current will be opposed by the inductor. This total effective opposition offered by an LCR circuit to the flow of current through it, that's called as impedance. What is impedance? Impedance is the total effective opposition offered by this LCR circuit to the flow of current through it. It means this impedance will be the combination of, this will be the opposition offered by the resistor, opposition offered by the capacitor, opposition offered by the inductor. ठीक है ना? So we say that the total opposition or the total effective opposition offered by an LCR circuit to the flow of current through it, that's called as impedance of LCR circuit. जो LCR circuit current को total opposition करेगा, ठीक है ना? उस opposition को हम कहते हैं impedance of LCR circuit. That impedance we denote by Z. We denote that impedance by Z. So what is an impedance? Total opposition offered by an LCR circuit to the flow of current through it, that is called as impedance. We denote this impedance by Z. Now let us derive the expression for this impedance. See, मैंने यहाँ पर एक series LCR circuit लिया which consists of the series combination of resistor R, capacitor C and inductor L. Suppose इस सीरीज LCR सर्किट को मैंने अप्लाई किया एक अल्टरनेटिंग EMF E is equal to E naught sin omega t. E is equal to E naught sin omega t जो है,
This is the alternating EMF which is applied to this series LCR circuit. जब मैं इसको EMF अप्लाई करूंगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होगी. सपोज दैट करंट इज I लिया मैंने, करंट फ्लोइंग through the circuit at any instant of time, I जो है that is the current flowing through the circuit at any instant of time. जब मैंने इसको EMF अप्लाई किया, इसमें करंट फ्लो होगा, तो I जो है that is the current flowing through the circuit at any instant of time. Suppose VR is the potential difference across resistor R. चूंकि यहां पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कंपोनेंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो डिफरेंट होती है. सपोज जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर होगा वो होगा VR. जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C होगा उसको मैं लूंगा VC. जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L होगा उसको मैं लूंगा VL. What is VR? VR is the potential difference across resistor R. What is VC? Potential difference across capacitor C. What is VL? Potential difference across inductor L. ठीक है ना? Therefore from Ohm's law आपका जो VR होगा यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, दिस VR is equal to I into R. ओम्स लॉ कहता है V is equal to IR. तो करंट क्या है रेजिस्टर में? I, ठीक है ना? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VR. तो VR हो गया I into R. इसी तरह चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, लिहाजा सेम करंट जो है वो फ्लो होगी थ्रू रेजिस्टर, थ्रू कैपेसिटर, थ्रू इंडक्टर, बिकॉज दे आर इन सीरीज. इसी तरह VC जो है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर. दिस विल बी इक्वल टू I into XC. चूंकि कैपेसिटर में जब हम लेते हैं अपोजिशन वो हम डिनोट करते हैं XC से, उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस. दिस हैज द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ द रेजिस्टेंस. सिमिलरली जो आपका VL होगा I into XL. Where this XL is the capacitive reactance and this is equal to 1 by omega C, and this XL is equal to inductive reactance, this is equal to omega L. ठीक है ना? Now in order to find the impedance of this LCR circuit, what we do, let us first draw the phase diagram. ठीक है ना? Number 1, we know that let us draw the phase diagram here, not here, we'll draw it somewhere here. यहाँ तो नहीं आएगा. Idiot. See, in a purely resistive circuit, voltage VR and current I are in phase. In a purely resistive circuit, आपको मालूम है voltage VR and current I are in phase. It means there is a phase difference of 0 between them. ठीक है ना? Therefore, this VR and VI, they act in the same direction. Therefore, VR and I, they act in the same direction. Here, in this diagram, in the phase diagram, suppose this is I, and in the same direction, we have VR. This is VR. लिहाजा जो VR और I जो है, they act along the same direction. Why they act along the same direction? Because they are in phase. There is a 0 phase angle between them. Therefore, VR and I, they act in the same direction. As shown in the figure, I have represented them, both of them, along x-axis. Suppose this OA is equal to VR. Let
इज इक्वल टू वी आर। OA को जो है OA इसको मैंने किसके बराबर रखा? VR के बराबर। नंबर 7, in a purely inductive circuit, this is resistive circuit, resistive circuit. In a purely inductive circuit, purely inductive circuit, जब मेरे पास इंडक्टिव सर्किट होगा उस वक्त क्या होता है, जो VR है वो VL होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, या हम कहेंगे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, EMF होता है, वो करंट को लीड करता है बाय फेज एंगल ऑफ π/2। इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट VL लीड्स I by a phase angle of π/2, by a phase angle of π/2। जो इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें जो वोल्टेज होती है वो करंट को लीड करता है बाय फेज एंगल ऑफ π/2। लिहाजा इस डायग्राम में जो VL मेरा होगा, दिस VL will act along Y, ठीक है ना, and this will make an angle of π/2 with I in what direction? In anti-clockwise direction. Let us represent that by B, OB. This OB is what? It is VR. It is VL. यहां देखो, इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज VL है ये लीड करता है करंट को बाय फेज एंगल ऑफ π/2। Therefore, this VL will act along VL, will act along OY, ठीक है ना, will act along OY in such a way that it makes an angle of π/2 with the current I in anti-clockwise direction because it is leading the current, ठीक है ना। थर्ड वन, अगर हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट लेंगे, इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट लीड करता है किसको? वोल्टेज को बाय फेज एंगल ऑफ π/2, और वी कैन से VC, वोल्टेज लैग्स करंट by a phase angle of π/2, by phase angle of π/2। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो पीछे जाता है, that lags the applied voltage by phase angle of π/2। लिहाजा यहां पर जो VC है that lags the current by a phase angle of π/2। लिहाजा जो ये VC होगा, this VC will act along OY dash, say along this direction, ठीक है ना, and this VC will also make an angle of π/2 with the current, but in what direction? Clockwise direction, because it lags the current. So let us represent that by OC. So this OC is VC. Now this OC is VC. यहां पर आपने देखा जो रेजिस्टिव सर्किट है उसमें वोल्टेज और करंट जो है दे आर इन फेज, देयरफॉर दे एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन। जो इंडक्टिव सर्किट है उसमें वोल्टेज लीड करती है करंट को बाय फेज एंगल ऑफ π/2। लिहाजा VL जो है वो मैंने रिप्रेजेंट किया अलोंग OY, ठीक है ना, इन सच ए वे कि इसने एंगल बनाया कितना? π/2, किसके साथ? करंट के साथ। नाउ कैपेसिटिव सर्किट में जो वोल्टेज है वो लैग करती है करंट को, लिहाजा VC जो है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया बाय OY डैश in such a way that VC makes an angle of π/2 with I, ठीक है ना, with current I in what direction? In clockwise direction। अब देखो, now here जो VL और VC है, ये VC है यहां तक, ये देखो बच्चों, ये VC है, ये VC है, दिस इज VC। यहां देखो, नाउ आपका जो VC और VL है, दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। VL and VC, they are the two vectors, two phasors, they act in what direction? Opposite direction, and they have a phase difference of π/2 plus π/2, that's pi between them। ये VL है, ये VC है, they act in what direction? Opposite direction with a phase difference of what?
पाई बिटवीन देम, क्योंकि ये एंगल कितना है यहाँ तक π/2, ये एंगल कितना है π/2, लिहाजा VL और VC के दरमियान ये पूरा एंगल जो है वो है पाई. Now VL and VC, they are the two phasors which act in the opposite direction. अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जो उनका रिजल्टेंट होगा वो सिंपली होगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B. लिहाजा इनका जो रिजल्टेंट होगा that will be VL minus VC, that will be VL minus VC. यहां पर बनाएंगे हम, यहां पर बनाएंगे फिर से ये डायग्राम यहां पर बनाएंगे अच्छे से. देखो भाई, now this VL and VC they act in opposite direction. ठीक है ना, VL पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ और VC जो है वो नेगेटिव किस एक्सिस की, नेगेटिव y एक्सिस तरफ. लिहाजा इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा VL माइनस VC. इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा VL माइनस VC. ठीक है ना, तो वो VL माइनस VC जो होगा that will act along the bigger vector. बिगर वेक्टर जो है वो है VL. जब हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B. ठीक है ना, क्योंकि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे इनका रिजल्टेंट होता है वो होता है वेक्टर A माइनस वेक्टर B. और जो रिजल्टेंट है ये हमेशा एक्ट होता है टुवर्ड्स द बिगर वेक्टर. वो आपने क्लास 11 में वेक्टर्स में पढ़ा है. यहां पर जो बिगर वेक्टर हमारा वो है VL. ठीक है ना, VC जो है वो छोटा वेक्टर है, क्योंकि VC में आपको बने VC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. ठीक है ना, VC इज इक्वल टू I ओमेगा C. ठीक है ना, तो VC जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, क्योंकि VC जो है VC ऐसे है IXC, तो दैट इज I into 1 by omega C. This VC is inversely proportional to omega, while VL is directly proportional to omega. क्योंकि XL जो है वो है ओमेगा L. ठीक है ना, इसका मतलब है जो हमारा VL है दिस इज बिगर वेक्टर एंड VC जो है ये स्मॉलर वेक्टर. देयरफॉर जो इनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वो होगा VL माइनस VC. दैट विल एक्ट अलोंग VL, यानी इस डायरेक्शन में. इसका नाम मैं रखूंगा OD. तो OD जो है ये रिप्रेजेंट करता है, OD मेरा जो है ये रिप्रेजेंट करता है VL माइनस VC. VL माइनस VC, यहां देखो OD मेरा जो है ये रिप्रेजेंट करता है VL माइनस VC. यानी जो VL और VC है इन दो का जो रिजल्टेंट है, इन दो का जो रिजल्टेंट है दैट विल एक्ट अलोंग OD. दैट विल एक्ट अलोंग OD. क्योंकि ये वेक्टर्स जो है VL और VC जो है ये अपोजिट वेक्टर्स. VL है अबाउट किसका, अबाउट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, VC है अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. लिहाजा जो इनका रिजल्टेंट होगा दैट विल बी VL माइनस VC. दैट विल एक्ट अलोंग द बिगर वेक्टर, दैट मींस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. दैट मींस दे विल एक्ट अलोंग OD. अब देखो यहां पर VL माइनस VC किससे मैंने रिप्रेजेंट किया, OD से. OD से, ये है ना OD. VL माइनस VC को किससे मैंने रिप्रेजेंट किया, शाबाश, OD से. ठीक है ना, अब VR को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, OA से. Now VR and VL minus VC they act along the two adjacent sides. ठीक है ना, drawn from a single point, that's O. Therefore, as per parallelogram law of vector addition, जो इन तीनों का रिजल्टेंट होगा, यानी VR का, VC का और VL का, जो इनका टोटल रिजल्टेंट होगा दैट विल बी applied here. ठीक है ना, that will be represented by the diagonal of this parallelogram. As per parallelogram law of vector addition, जो VL minus VC और VR है, क्योंकि they act along two adjacent sides. एक साइड क्या है OA, दूसरा साइड क्या है OD. लिहाजा इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका रिजल्टेंट जो होगा that will be E. That will be E, and that resultant will act along the diagonal of the parallelogram OAFD as per parallelogram law of vector addition. फिर से VL and VL minus VC and VR
VL minus VC and VR, they act along two adjacent sides OA and OD. Therefore, their resultant will be represented by the diagonal OF of the parallelogram. ठीक है ना? What is their resultant? Their resultant is E, and this resultant act along the diagonal of the parallelogram. Now, let us move forward. अब हम यहां पर क्या करेंगे? We will find first the magnitude of this resultant. हमें पता है अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे A और B, if they are represented by the two adjacent sides of parallelogram, उनका जो रिजल्टेंट होता है that acts along the diagonal, ठीक है ना? उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है R is equal to under root of A square plus B square plus 2AB cos theta, where theta is the angle between the two vectors. यहां पर एक वेक्टर क्या है मेरा VL minus VC, दूसरा वेक्टर क्या है VR, इनके दरमियान क्या है एंगल, शाबाश, पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री, ठीक है ना? अब मैं निकालूंगा इस V का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ V, मैग्नीट्यूड ऑफ V, देखो बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ V, वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एट्रैक्शन लगाऊंगा मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू, वहां लिखते थे हम R इज इक्वल, यहां लिखेंगे E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A square, what is vector A? VR, this is VR square plus B square, what is my B? VL minus VC, this is VL minus VC whole square plus twice A is VR, B is VL minus VC into cos 90. Why it is cos 90? Because angle between VL minus VC and VR is 90, ठीक है ना? cos 90 क्या होता है? 0, ठीक है ना? तो अगर आप अच्छे लड़के होंगे तो आप पहले से ही ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो सिंपली होता है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, cos 90 तो 0 है, ठीक है ना? ये बनेगा E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, शाबाश, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है? ठीक है बेटा, ये cos 90 जो है ये 0 बन जाएगा, तो ये सिंपली निकलेगा VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में VR, VL और VC का वैल्यू में दूंगा। VR मुझे पता है वो है I इंटू R, VL मुझे पता है वो है I इंटू XL, VC मुझे पता है वो है I इंटू XC, तो लगा वैल्यू, ये बनेगा E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, शाबाश, VR का वैल्यू दे दो, दिस इज IR होल स्क्वायर प्लस, शाबाश, VL का वैल्यू दे दो, दिस इज I इंटू XL, ठीक है, माइनस VC का वैल्यू दे दो, दिस इज I इंटू XC का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंपलीफाई करो इसको आगे, ये बनेगा E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां देखो पहली टर्म ये बनेगा I स्क्वायर R स्क्वायर, I स्क्वायर R स्क्वायर, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसमें I कॉमन निकालेंगे, I निकालेंगे कॉमन, ठीक है, ये बनेगा प्लस ब्रैकेट में ही कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा I इंटू XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहां पर I को भी स्क्वायर है, I को भी स्क्वायर है, ठीक है ना? यहां पर अलग अलग स्क्वायर देंगे, I को स्क्वायर देंगे अलग, उसको स्क्वायर देंगे अलग, ठीक है ना? ये क्या बनेगा? E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, शाबाश, I स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है, प्लस I स्क्वायर इंटू, शाबाश, XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में आपका I जो है, I स्क्वायर जो है वो कॉमन आएगा, I को कॉमन निकालेंगे, I स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, I स्क्वायर को कॉमन निकाला, अंदर आपको क्या रहा? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ठीक है? अब ये I जो है ये रूट से बाहर आएगा, चूंकि स्क्वायर है, तो आपको क्या आएगा? आपको आएगा E इज इक्वल टू I इंटू अंडर रूट ऑफ, शाबाश शाबाश, फटाफट बताओ, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आगे जाएंगे हम, इसको रखो नाम इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7। अब I जो है ये E के नीचे लाओ, ठीक है ना? दिस एम्प्लाइज E डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ शाबाश आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. This is E by I is equal to under root of R square plus XL minus XC का whole square. चूंकि I को किसके नीचे लाया? E के नीचे. अब E क्या है? What's E? E is the EMF applied to the LCR circuit. What is I? Current flowing through the LCR circuit. Voltage by current जो होता है वो होता है resistance, opposition. यहाँ पर जो opposition है, total opposition, वो है Z. ठीक है ना? वो है impedance. What is E? E is the applied EMF. Is the EMF applied to the series LCR circuit? I is the current flowing through it. Therefore, E by I. This is voltage divided by current. This will be equal to opposition. What is that opposition here called? That opposition is called impedance. But E by I is equal to Z. E by I is equal to Z. ठीक है ना? E by I is equal to Z. Therefore, इस इक्वेशन में देखो, this Z is equal to under root of शाबाश R square plus XL minus XC whole square. Let us call this equation number 3. कैसे आपने किया? कैसे आपने किया? Just I will revise you, then I will मैं इसको रब करूंगा. VR और I जो है they act in the same direction because they are in phase. VC जो है VL जो है ये करंट को लीड करता है by a phase angle of pi by 2. Therefore this will act along OY in anti-clockwise direction. It will make an angle of pi by 2 with the current. VC जो है वो लैग करता है करंट को, so this will act along the negative direction of x-axis. Now VL और VC जो है they are opposite vectors having a phase difference of pi between them. लिहाजा इनका जो रिजल्टेंट होगा VL minus VC वो एक्ट होगा along the bigger vector that is along VL. तो उसको मैंने रिप्रेजेंट किया किससे? OD से. ठीक है ना? Now VL minus VC और VR they are acting along two adjacent sides. ठीक है ना? लिहाजा इनका जो रिजल्टेंट E होगा वो एक्ट होगा along the diagonal. अब इस रिजल्टेंट का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है. वो निकाला मैंने. E is equal to under root of A square plus B square. A क्या है? VR. B क्या है? VL minus VC का होल स्क्वायर. यहाँ मैंने VR का वैल्यू दिया, VL का वैल्यू दिया, VC का वैल्यू दिया. करंट को कॉमन निकाला, फिर मुझे निकला ये. उसके बाद I को डिवाइड किया E को, मुझे E by I आया. मगर E by I है Z. What is Z? Impedance of LCR circuit. तो मुझे एक्सप्रेशन निकला. क्या एक्सप्रेशन निकला मुझे बच्चों? शाबाश. मुझे एक्सप्रेशन निकला Z is equal to under root of R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर. इसको मैंने रखा इक्वेशन नंबर 3. मगर आपको पता है जो आपका XL है वो होता है ओमेगा L. ठीक है? जो आपका XC है वो है 1 by ओमेगा C. पढ़ा है आपने? This is inductive reactance and this is capacitive reactance. इसमें लगा वैल्यू. This is Z is equal to under root of शाबाश R square plus XL के बदले लिखो शाबाश. This is omega L minus XC के बदले लिखो 1 by omega C whole square. Let us call this equation number 4. I have put the value of XL that is omega L. उसके बाद माइनस है XC का वैल्यू वो क्या है? 1 by omega C whole square. ये दो इक्वेशंस जो है, these two equations, they represent the expressions for impedance of a series LCR circuit. Equation 2nd, equation 3rd and equation 4th. Both of them represent the expressions for what? For the impedance of a series LCR circuit. ठीक है ना? Now let us discuss some of the special cases. Some 3rd और 4th है, ये represent करते हैं expression for impedance of LCR circuit. Now let us discuss some special cases. Number 1. If XC is equal to 0, जो ये LCR circuit है, suppose जो आपका कैपेसिटर है, suppose that does not offer any opposition to the flow of current. When that does not offer any opposition to the flow of current, then आपका XC जो होगा वो होगा 0. तब from equation 2nd आपको क्या निकलेगा? शाबाश. आपको निकलेगा Z is equal to शाबाश. Z is equal to under root of R square. ठीक है ना? R square plus XL minus 0 whole square. चूंकि आपका जो XC है that is 0, so you get Z is equal to under root of R square plus XL minus 0 square. ठीक है ना?
तो आपका Z निकलेगा बराबर अंडर रूट ऑफ, शाबाश, क्या निकलेगा शाबाश बच्चों, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है ना, XL का वैल्यू भी दे सकते हो आप, तो आपका Z आएगा अंडर रूट ऑफ, शाबाश, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर। ये जो है दिस रिप्रेजेंट्स इंपीडेंस फॉर RL सर्किट, चूंकि इसमें एक रेजिस्टर है, दूसरा इंडक्टर है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस ऑफ व्हाट, RL सर्किट। ये जो है दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस ऑफ RL सर्किट। ठीक है, RL सर्किट के लिए जो इंपीडेंस होगी वो होगी Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर, और दैट विल बी R अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। आगे जाएंगे हम, दूसरा केस। अब XL 0 के बराबर लेंगे, अब XL 0 के बराबर लेंगे। ठीक है ना, नाउ लेट अस टेक सेकंड केस। इफ XL is 0, if XL is 0, यानी जो आपका LCR सर्किट है उसमें इंडक्टर जो है वो साइलेंट है। साइलेंट मींस वो कोई अपोजिशन नहीं कर रहा है करंट को, तो इसीलिए मैंने XL 0 लिया। तब क्या बनेगा इक्वेशन थर्ड, जरा मुझे बताओ। ये बनेगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, शाबाश, R स्क्वायर, शाबाश, प्लस 0 माइनस XC होल स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, शाबाश, R स्क्वायर प्लस इंटू माइनस XC स्क्वायर। ठीक है ना, ये बनेगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है ना, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। और इस ऊपर इवन है ना, जब पावर इवन होता है वो प्लस आता है, ये खुद पे खुद प्लस आता है, क्योंकि पावर क्या है, इवन। -1 रेज टू पावर n जो होता है वो होता है पॉजिटिव इफ n इज इवन। अगर n नेगेटिव होगा तब पॉजिटिव आएगा, तो इसीलिए मैंने यहां पॉजिटिव लिखा। आप इसको लिखोगे Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, शाबाश, R स्क्वायर प्लस XC का वैल्यू दे सकते हैं 1 बाई ओमेगा C का स्क्वायर। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है इंपीडेंस ऑफ RC सर्किट। क्यों RC सर्किट? क्योंकि इसमें आप रेजिस्टर रहा और क्या रहा, कैपेसिटर। सो दिस रिप्रेजेंट्स द इंपीडेंस ऑफ व्हाट, RC सर्किट। थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट केस ऑफ दिस इज लाइक दिस। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट केस, देखो देखो जी, थर्ड केस क्या है इसमें। थर्ड इंपॉर्टेंट केस क्या है, अगर XL बराबर होगा XC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। इफ XL इज इक्वल टू XC, यानी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है दैट इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर आपके सर्किट में जितना अपोजिशन करेगा कौन, जितना अपोजिशन इंडक्टर करेगा, अगर उतनी अपोजिशन कैपेसिटर ने भी की, यानी अगर XL किसके बराबर है, XC के बराबर, तब देखो इंपीडेंस देखो, तब आपका इंपीडेंस निकला अंडर रूट ऑफ, शाबाश, R स्क्वायर प्लस, चूंकि XL किसके बराबर है, XC के, लिहाजा XL माइनस XC होगा 0, दिस विल बी 0 स्क्वायर, है ना, क्योंकि XL किसके बराबर है, XC, XL माइनस XC इज इक्वल टू 0 व्हेन XL इज इक्वल टू XC। तो Z बनेगा आपका अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और Z बनेगा आपको अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसल्स, तो Z बनेगा आपको R। Z किसके बराबर बन गया, R के बराबर। यहां देखो असली इंपीडेंस के लिए क्या फार्मूला है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। जब XL बराबर होगा XC, उस वक्त जो आपकी इंपीडेंस है Z, वो निकली खाली R के बराबर, यानी वो निकली मिनिमम, वो निकली मिनिमम। When the inductive reactance is equal to the capacitive reactance, in that case the impedance of LCR circuit is simply equal to R. That means it is minimum. When impedance is minimum, when opposition is minimum, this implies maximum current will flow through LCR circuit. जब हम रेजिस्टर कम करते हैं, करंट जो फ्लो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि करंट को अपोजिशन कौन करता है, रेजिस्टेंस। ठीक है ना, अपोजिशन। अब यहाँ इस जो LCR सर्किट है, इस वक्त इसकी जो रेजिस्टेंस है, इस वक्त इसकी जो इंपीडेंस है वो मिनिमम है, अपोजिशन जो है वो मिनिमम है, लिहाजा मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू LCR सर्किट। ये कंडीशन, दिस कंडीशन एट विच impedance of LCR circuit is minimum, so that maximum current passes through the LCR circuit. This condition is called electric resonance.
What is this condition called as? Electric resonance. इलेक्ट्रिक रेजोनेंस. इलेक्ट्रिक रेजोनेंस जो एलसीआर सर्किट की होती है वो कंडीशन होती है जिस वक्त एलसीआर सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है वो मिनिमम होती है, जिस वक्त एलसीआर सर्किट की जो इंपीडेंस होती है वो मिनिमम होती है. जब इंपीडेंस मिनिमम होगी तो एलसीआर सर्किट जो होगा, एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा. ये कंडीशन एट विच मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द एलसीआर सर्किट. ठीक है ना? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक रेजोनेंस एंड दिस कंडीशन occurs only when the inductive reactance is equal to the capacitive reactance. This completes the impedance. ये OX बदल है. This was OX. यहां से करंट जो था वो था I. यहां तक जो आपका वोल्टेज था that was VR. और ये था आपका OD. यहां देखो, ये था आपका OD और ये था VL माइनस VC. यहां तक जो आपको था दिस OD, दिस वाज VL माइनस VC. ठीक है? ये था आपका B, ये था आपका भाई VL और ये था यहां से आपका C एंड दिस C वाज VC. ये था VC यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. अब इन दो का जो इंस्टू that is E and that E was acting along the diagonal of this parallelogram and I have named this parallelogram as OADF and this diagonal was represented E यानी total EMF. ठीक है ना? Now I have to derive the expression for the phase angle. अब मैं एक्सप्रेशन डिराइव करूंगा किसके लिए? फेज एंगल के लिए. फेज एंगल. नाउ आई विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फेज एंगल. एक बार ये भी आया है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फेज एंगल इसी क्वेश्चन में. फेज एंगल के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है. फाई जो है फाई दैट इज द फेज एंगल बिटवीन ई एंड आई. ठीक है? याद देखो, लेट phi is equal to phase angle between E and I. phase angle between E and I यानी E और I के दरमियान जो मैंने phase angle लिया वो मैंने लिया phi. ठीक है ना? यानी E जो है इसने करंट की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाया? phi. अब हम डायरेक्शन हमें पता है, वो हम फिजिक्स में टेंजेंट से निकालते हैं, tan phi से. तो हम यहां पर tan phi निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? हम एक ट्रायंगल लेंगे FAO. ठीक है ना? इन ट्रायंगल FAO जो tan phi होगा वो होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. आपका परपेंडिकुलर है FA, दैट इज FA डिवाइडेड बाय आपका बेस है OA. अब आपका FA जो है FA, दिस इज इक्वल टू OD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल. OD जो है वो है VL माइनस VC. ठीक है ना? तो हम लिखेंगे tan phi इज इक्वल टू VL माइनस VC. VL माइनस VC. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपका OD जो है दैट इज FA जो है दैट इज VL माइनस VC डिवाइडेड बाय आपका जो OA है दैट इज R. आपका OA है दैट इज R नहीं है, दैट इज VR. OA जो है दैट इज VR. ठीक है ना? वैल्यू लगाओ इन सब के तो आपको tan phi बनेगा. शाबाश. देखो क्या बनेगा? ये बनेगा I इंटू XL माइनस I इंटू XC डिवाइडेड बाय I इंटू R. ऊपर से करंट I जो है वो कॉमन निकलेगा और वो I जो है वो नीचे वाले I के साथ कट जाएगा. तो आपको क्या निकलेगा? आपको निकलेगा tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R. देखो यहां से I कॉमन निकालो, अंदर रहेगा XL माइनस XC. ये ऊपर वाला I और नीचे वाला I कैंसिल हो जाएगा तो आपको tan phi निकलेगा XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R. ठीक है? ठीक है ना? फाई निकालो. फाई किसके बराबर निकलेगा? फाई निकलेगा आपको tan, वहां ले लो तो ये बनेगा tan इनवर्स
tan इनवर्स शाबाश XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। इसको रखो नाम इक्वेशन A फॉर एग्जांपल। अब XL और XC का वैल्यू भी दे सकते हैं, तो आपको फाई निकलेगा किसके बराबर शाबाश, फाई निकलेगा आपको tan इनवर्स शाबाश, बोलो क्या निकलेगा शाबाश, ओमेगा L माइनस XC का वैल्यू क्या है 1 बाय ओमेगा C डिवाइडेड बाय R। इसको रखो इक्वेशन B। This equation A and B, they represent the expressions for what? They represent the expressions, they represent the expression for the phase angle। ये जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर फेज एंगल। कैसे आपने सिंपली लिया, फाई आपने लिया फेज एंगल बिटवीन E एंड I, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये ट्रायंगल ले ली, यहां पर आपने टेंजेंट ऑफ फाई निकाला, तो बैक में आपने वैल्यूज लगाए VR माइनस VC के, तो आपका वहां पर पहुंच गया फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। तो R phi is equal to tan inverse omega L minus 1 by omega C divided by R. These are the two expressions for the what? For the phase angle. Now let us discuss some special cases of phase angle. Number 1, if XL is greater than XC, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तब आपका XL माइनस XC जो होगा वो होगा पॉजिटिव। अगर XL होगा ग्रेटर देन XC, तब आपका जो XL माइनस XC होगा ये होगा पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि XL ग्रेटर देन XC। उस सूरत में आपका जो फाई है फेज एंगल वो भी पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है ना। Therefore फ्रॉम इक्वेशन A जो आपका फाई होगा वो होगा पॉजिटिव। जब आपका फाई पॉजिटिव होगा इसका मतलब है जो E है इसने लीड किया होगा करंट को। पॉजिटिव मींस यहां से एंगल जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है एंगल एंटी क्लॉकवाइज। दिस एम्प्लाइज E लीड्स I। जब E I को लीड करेगा उस वक्त ये जो LCR सर्किट आपका है ये प्योरली बिहेव करेगा एज इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट, इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट। इसको हम कहते हैं इंडक्टिव डोमिनेंट सर्किट। क्यों इंडक्टिव डोमिनेंट होगा? क्योंकि E जो है E ने लीड किया I, ठीक है। नंबर सेकंड, इफ XL इज लेस देन XC, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस छोटा होगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ा होगा तो आपका XL माइनस XC जो होगा वो होगा नेगेटिव। तो इक्वेशन A से आपको निकलेगा फाई इज नेगेटिव। जब फाई होगा वो नेगेटिव होगा, फाई इज नेगेटिव, फाई इज नेगेटिव, उस वक्त क्या होगा? जब फाई नेगेटिव होगा इसका मतलब है जो E है E इसने लैग किया है I को, E लेग्स I। इसका मतलब है E जो हो वो नीचे वाले साइड में होगा, नीचे वाले साइड में होगा। E ने लैग किया होगा I को, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये जो सर्किट होगा इस वक्त LCR सर्किट ये होगा कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट। ये क्या होगा? कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट। इस वक्त जो आपका LCR सर्किट होगा दिस विल बी कैपेसिटिव डोमिनेंट सर्किट, ठीक है। थर्ड, इफ XL इज इक्वल टू XC, अगर XL किसके बराबर होगा? XC के बराबर। अगर XL होगा XC के बराबर उस वक्त आपका XL माइनस XC जो होगा वो होगा 0। तो उस वक्त जो आपका फाई है वो भी 0 के बराबर निकलेगा। जब फाई 0 के बराबर निकला E और I जो होंगे they will be in the same direction, it means they will be in the phase। उस वक्त जो सर्किट होगा ये होगा purely resistive। This implies E and I are in phase, E and I are in phase। तो इस वक्त जो आपका सर्किट होगा वो होगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद है एडमिटेंस। एडमिटेंस जो है एडमिटेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस। रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस इज कॉल्ड एज एडमिटेंस। तो एडमिटेंस अगर हम पढ़ेंगे एडमिटेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस, यानी दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय Z, ठीक है ना। Z का वैल्यू दे दो, दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय Z का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। हम एडमिटेंस का यूनिट भी निकाल सकते हैं, यूनिट, क्योंकि ये है रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस। इंपीडेंस जो है उसका यूनिट ओम है, तो एडमिटेंस जो है एडमिटेंस का यूनिट होगा ओम इनवर्स, जिसको हम मूव भी कहते हैं, ठीक है ना। दिस कंप्लीट्स दिस लेक्चर। टोटल रिएक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रिएक्टेंस।
Susceptance is the reciprocal of total reactance. Simple.